So now we have on stage Rupal. Okay, give a huge round of applause for her. So she has secured 26th rank in this year's UPSC CSE examination. So without wasting time, I would like to hand over the mic to Rupal. But just a small piece of request from you all. Like whenever you are asking any specific question, just raise your hand first so that like the toppers will also be able to locate you. They will better be able to interact with you, right? So just follow this particular practice and use the mic whenever you are asking question, because once the video will be done, that will be uploaded and the online student will also be able to get an idea regarding what questions you are asking, right? So okay, so thank you everyone. Hello everyone, my name is Rupal Rana and I'm All India Rank 26 this year. And first thing that I would like to ask you guys is that you all are beginners here, right? Your first attempt is going to be next year, not this June. This June. Okay, okay. So I think that beginning is always the toughest and the hardest thing because when we start something, we all are very confused. I can tell you when I can relate with my journey. When I started, so some toppers used to say that they used to make online notes. So I started making online notes. Then I was like कि नहीं नहीं online नहीं हो रहा है. Evernote and OneNote मुझे सूट नहीं कर रहा है. Then some toppers said कि नहीं नहीं मैं तो offline notes बनाती थी and then क्योंकि उसमें हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो योर रिटेंशन पावर इंक्रीजेज एंड एट द वेरी सेम टाइम आई मीन इट हेल्प्स यू इन आंसर राइटिंग. देन आई स्टार्टेड मेकिंग ऑफलाइन नोट्स एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं नहीं ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है. सो माई 15-20 days वर लाइक when I started my preparation, I was all in confusion. So I can all relate it that what you guys are feeling right now. So I would like to start with giving a broad timeline to you. You have enough time, and if you utilize it very judiciously, very mindfully, then I think it's more than enough to clear in this attempt, your first attempt, if you have the right guidance in the right direction. So if you start from like, you all are Vision IA students, right? So if you start from like May or June, so from June till December, you should have the strategy of completing your optional paper at least. Optional is a very deciding factor in giving you a rank. Without good score in optional, you cannot get a rank, I mean your preferred service or anything. So your first strategy should be that till December, you complete your optional, and at the very same time, I mean your time division should be like 70% time you should give to your optional and then 30% time to the other GS papers. And in GS papers as well, you should prioritize. For example, ethics paper is something that you should, I mean, score good marks in that. And it is something that efforts are not that much needed in ethics paper to score well if we compare it with the GS1 or GS2, wherein we have to cover a lot of subjects. So your strategy should be that till December. And also, I would like to add one more thing, that when I was just sitting here, I just noticed that you all are just listening and you're not noting something down. So what will happen is that after attending some 15-20 toppers talks, you will not remember anything, and then everything will be in a hodgepodge situation. Sab khichdi pak chuka hoga us time tak, and then you will be at the same stage only, and then you will also be confused कि अब करना क्या है. सब toppers talks भी attend कर ली, लेकिन still you don't have that direction. So whosoever you are listening to, please note something down, and then after you are done with all these talks, find some common points जो सब कर रहे हैं. So there is a way to clear this exam that I've realized this. This was my 4th attempt. I could not clear my prelims in my earlier 3 attempts. And then after my 3rd attempt, I realized that I am making some mistake. कुछ तो गलत है. People are clearing prelims in 3-4 days only. And despite studying so much, my knowledge base was never an issue in clearing prelims. So I was adopting a very wrong strategy. So I realized this. कैसे जब अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया आपने, अभी आप कुछ लिख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, एंड देन आफ्टर 15-20 दिन के बाद, 1 महीने बाद के बाद, यू विल बी इन अ सेम सिचुएशन कि अब करना क्या है. So please, जो भी common points then you find, incorporate all those points in your strategy. This is the best way to, I mean, attend if you are giving your 1 hour or 2 hour over here. So please note something down. Everybody who is saying anything, क्योंकि सबने एग्जाम क्लियर किया है तो everybody कुछ सबने एक पाथ को फॉलो किया है. So please note them down, and जो भी कॉमन चीज़ें लगे वो अडॉप्ट कीजिए. Second thing is, yes, 70% time to your optional, 30% time to your GS papers. January is the time, I think, when you should segregate your studies into prelims mode. Gone are those days when people used to study for 20 days. I heard when I was preparing, so there was this one topper, I would not name her, and she said that she's just studied for 20 days in her first attempt for prelims and she just cleared it like anything. Prelims is not that easy stage. It is the most unpredictable stage. And in fact, after 2023 paper, we have all realized this, how unpredictable, vague this exam has become. So you need to give, I mean, equal respect to prelims to clear it.
I could not clear it in my 3 attempts, but I realized that it is the toughest stage. At least it was the toughest stage for me. So January is the time that you should segregate your studies. You should stop preparing for mains, and you should only give your time to prelims paper. So I have noticed that there are 4 pillars to prelims paper. Number 1 is the static resources. There are some very fixed resources that you have to follow. आपको different sources नहीं follow करने हैं. For example, if I am reading Lakshmikant and the person sitting next to you or your friend might be, he or she might be reading DD Basu. So वो एक FOMO डाल देता है कि यार उसको तो कुछ ज़्यादा ही information है, हमारे पास तो नहीं है. Don't follow anyone blindly over here. Stick to one resource. Everybody जिसने भी exam clear किया है, I think सबने ये चीज़ बोली है. आप चाहे 5 साल पहले टॉपर स्टॉक उठा के देख लो या 3 साल पहले देख लो. Everybody has followed the very fixed resources. और एक सोर्स को फॉलो करो एंड रिवाइज इट n नंबर ऑफ टाइम्स. n नंबर ऑफ टाइम्स इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में वो किस रीडिंग तक जा रहा है. एज फार एज माई स्टडीज़ वर कंसर्न, मैंने लक्ष्मीकांत को 15-20 बार पढ़ा होगा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग थिंग्स ओवर हियर. सिमिलरली स्पेक्ट्रम. Similarly, for economy, I followed Vivek Singh, जो सर है. I think his book is really nice and helped me in clearing my concepts for economy. सो एक सोर्स को फिक्स कीजिए. आप जैसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ विजन IAS के, तो जो भी आपका कोचिंग मटेरियल है या जो टीचर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ स्टिक टू दैट. एंड देयर इज़ अ वे ऑल्सो कि आप अच्छे से कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको आज फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ाया, तो फंडामेंटल राइट्स इज़ अ बिग चैप्टर. वो 3-4 दिन लगते हैं उसको कवर करने में टीचर्स को. तो आज आर्टिकल 21 पढ़ाया आपको. सो इट इज़ योर ड्यूटी टू गो होम, अपने नोट्स को रिवाइज करना, एंड एट द वेरी सेम टाइम लक्ष्मीकांत खोलो या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको खोलो एंड वहीं से कंप्लीट कर लो. Do that very very religiously if you want to clear it in your very first attempt. See, you will require focus and dedicated strategy to clear this exam. So you are very privileged enough that you are having your teachers over here to clear your doubts and everything. So एक strategy अपने पास रखो कि जो भी teachers यहाँ पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट वही उसी चीज़ को जाके आपको अपनी बुक से कवर करना है. अदरवाइज़ क्या होगा कि आप दिसंबर फरवरी तक आप अपना कोर्स करेंगे, एंड देन फरवरी के बाद आप ये बुक्स उठानी शुरू करेंगे, एंड देन जब बुक्स उठाएंगे सो यू विल फील वेरी फ्रेश कि ये तो क्या ही है, हम जो पढ़ा था वो तो भूल ही गए हम लोग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसी दिन जाके कंप्लीट कीजिए उसको. ऐसे करके जब आप अपने फरवरी तक जाएंगे तो आपका 2-3 बार आपका कोर्स अपने आप कवर हो चुका होगा. एक बार टीचर्स के थ्रू एंड 1-2 बार आपने जो रिवाइज किया होगा उन नोट्स को, एंड जो बेसिक बुक्स आपने कवर की होंगी. सो स्टैटिक रिसोर्सेज इज समथिंग दैट विल हेल्प यू क्लियर प्रीलिम्स. हमारे साथ क्या होता है दैट वी ऑल फोकस ऑन करंट अफेयर्स अ लॉट. करंट अफेयर्स इज सो वास्ट दैट आई थिंक यू विल गो मैड एट इट अगर आपने ज़्यादा फोकस किया. सो वी शुड नो वेयर टू स्टॉप इन करंट अफेयर्स. For example, in my case, I was very religiously following the Hindu newspaper. I never skipped the newspaper. And secondly, I used to read monthly magazine, just a casual reading. I never made notes out of the monthly magazine or something. क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, प्रीलिम्स को सेपरेट करना, मेंस को सेपरेट करना, एंड देन उस चीज़ों को. So just to make myself aware, I used to read monthly magazines. I never made notes out of it, and I used to rely on the PT and the mains 365. क्योंकि प्रीलिम्स में जब आपको करना है तो जो PT 365 दैट इज़ वेरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड, वही आपको चीज़ें याद करनी है, वही चीज़ें आपको करनी है. और एक और चीज़ है कि सब बोलते हैं कि PT 365 से आज तक मतलब आजकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. डेफिनेटली ये दिस इज़ नॉट एन एग्जाम कि जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट हाउ इट विल हेल्प इज़ कि व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट एग्जाम हॉल, प्रीलिम्स वाले एग्जाम हॉल में, एंड आप बैठे हैं, आपके साइड वाला कोई कैंडिडेट बैठा है, सो यू शुड हैव ब्रॉडर एंड वाइडर नॉलेज दैट ही और शी हैज़, ताकि आप वो नॉलेज को यूज़ करके एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को. एलिमिनेशन के बिना प्रीलिम्स इज नॉट पॉसिबल टू क्लियर. देयर वाज दिस हाइप अराउंड कि 2023 में तो एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड, बट आई डोंट थिंक सो दैट वाज ट्रू. इवन इन दिस प्रीलिम्स देयर वर 10 to 15 क्वेश्चंस जो अगर आपने PYQ एनालिसिस किया होता या कुछ भी किया होता, तो आई मीन अच्छे से देखा होता, एलिमिनेशन ट्रिक्स थोड़ी देखी होगी, तो आप इजीली कर लेते उस चीज़ को. एंड GS पेपर 1 कट ऑफ वॉज जस्ट 75 मार्क्स दिस ईयर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को पढ़ें, बट रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ें. तो monthly magazines आप casual reading कर सकते हैं, at least I did that, and relied thoroughly on PT and mains 365. Then number 3rd pillar is that the previous year question papers. PYQ, I think I cannot emphasize enough on the importance of PYQs. PYQs are so important that you have to analyze it, not just कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर पता लगा लिया कि हाँ ये आंसर है, एंड देन यू कैन गो अहेड. नो, इट्स नॉट द राइट वे टू डू द PYQ एनालिसिस. फॉर एग्जाम्पल, पहले काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें जो ऑप्शंस है वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली बना दिया गया है. इनफैक्ट 2-3 प्रीलिम्स से तो डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको 2 सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने PYQ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है अच्छे से. तो PYQ एनालिसिस इज समथिंग दैट आई थिंक यू शुड
फोकस मतलब इतना ज़्यादा दैट बहुत ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए. एंड एक तो ऑप्शन से ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. एक सेकेंड थिंग इज दैट आपको थीम्स पता चलते हैं जब आप PYQ को रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म जैनिज्म से हर साल क्वेश्चन आता है. इस साल भी देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म. नेक्स्ट थिंग, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, रेपो रेट, मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन. ये आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQ एनालिसिस करोगे. अभी ऑल आर बिगनर्स, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार कितना सब कुछ है, बट इट्स नॉट द राइट वे टू थिंक लाइक दैट. अगर आपने एक बार सिलेबस देखा है, सिलेबस शुड बी योर बाइबल. आई मीन जस्ट पेस्ट इट जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, एंड जस्ट यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट कि 3 दिन तक लेके बैठे हैं रट्टा मारे हैं सिलेबस का. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू जस्ट सी द सिलेबस डेली ऑन अ डेली बेसिस. जस्ट 15 मिनट्स कभी भी जब आपके पास टाइम लगता है तो सिलेबस को जस्ट आपको एक बार देखना है. उससे हेल्प क्या मिलेगी? एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में इट विल रियली हेल्प यू अलॉट, इन द सेंस दैट जो इरेलीवेंट न्यूज़ होती है न्यूज़पेपर में आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपका माइंड दैट सबकॉन्शियसली काम करना शुरू कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एथिक्स में देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन एथिक्स. सो वॉट विल हैपन इज इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द सिलेबस एंड इफ देर इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल देर वॉज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था. अगर आपने एथिक्स के PYQs एंड एथिक्स के सिलेबस देखा है सो यू विल रियलाइज कि मैं इसको इन्वायरमेंटल एथिक्स एग्जाम्पल में आई विल डेफिनेटली इंक्लूड इट. Similarly, there was this मुंबई में there was this issue that was going on related to some cutting down of trees. तो आपको वो एकदम से क्लिक करेगा दिमाग में कि आई कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल एज माई एथिक्स. और एथिक्स में आप तभी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जब आप एग्जाम्पल्स को यूज़ करें. थियोरी विल नेवर गेट यू मार्क्स इन एथिक्स. It's only the value addition, the examples, the current affairs examples that you will use that will help you. और वो चीज़ आती कैसे है? We are not some super humans या कुछ aliens यहाँ पर है. हम 10 दिन पहले तक ऐसे ही थे. I mean we all were very scared कि कैसे होगा या क्या होगा कि सब कुछ. But the thing is that there was a structure in our preparation. So like I told you in the ethics के examples. Similarly कोई भी पर्सनैलिटी न्यूज़ आती है, जैसे देयर वाज दिस पद्मा श्री अवार्ड्स वगैरह हुए, तो वहाँ से आप डायरेक्टली एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं अपने एथिक्स में. सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल दीज थिंग्स इज दैट यू हैव टू एनालाइज द PYQs वेरी वेरी थरली. आई मीन मेक इट अ हैबिट और अ रिचुअल कि 15 मिनट आपको एक तो सिलेबस देखना है एंड आपको हाफ एन आवर PYQs देखने ही देखने हैं. एंड एक बार PYQ देखने से कुछ नहीं होता है. जब आप व्हेन यू सी देम ऑन अ रेगुलर बेसिस तो 5-6 टाइम रीडिंग्स के बाद यू गेट दोज नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी PYQ. आपको लगता था कि अरे यार, जैसे फॉर एग्जांपल जिसने भी 2023 का पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो वो आके फिर रियलाइज़ करता है जब ऐसे ठंडे दिमाग से सोचता है अरे यार ये तो मैं ऐसे भी कर सकता था, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग चाहिए ही नहीं था अगर इफ़ आई वॉज काम इनफ या मैंने PYQ एनालिसिस किया होता. आई बिलीव दैट माई सेकंड अटेम्प्ट वॉज माई बेस्ट अटेम्प्ट इन टर्म्स ऑफ माई प्रिपरेशन एंड द नॉलेज बेस दैट आई हैड गैदर्ड. हाउएवर आई कुड नॉट क्लियर दैट प्रीलिम्स. आई मिस दैट प्रीलिम्स बाय 5 marks. Number one mistake was that I just attempted 71 questions. I did not listen to anybody. I was like कि नहीं मैं तो accuracy पे focus करूँगी. I will not take risk in the prelims. And I did not analyze PYQs enough. So जब आके मैंने देखा कि मैंने क्या क्या mistakes की despite having knowledge, static books, CA and everything I have done. But still मेरा clear नहीं हो रहा. तो देन आई एनालाइज एंड देन मैंने देखा एंड देन मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है एलिमिनेशन की, ये ऐसे क्वेश्चन हो सकता था if you had analyzed the PYQs enough. So I realized that this was the biggest mistake that anybody can do. And you cannot clear prelims examination अगर आपने PYQs analyze नहीं किए हैं. It is very very important and you will realize it. अगर आप अभी नहीं करेंगे, आप अपना एक अटैम्प्ट देने के बाद रियलाइज़ करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है PYQs की. एंड नंबर 4 पिलर जो प्रिलिम्स का है दैट इज़ द मॉक टेस्ट्स. देर आर पीपल जो 100+ से मॉक्स अटैम्प्ट करते हैं. इट्स ऑल वेरी स्कैरी. जब हम सुनते हैं कि 100 कैसे होंगे, इवन आई यूज टू बी स्कैर्ड व्हेन समबडी यूज्ड टू टेल मी कि दे हैव सॉल्व्ड 100 और 110 क्वेश्चन पेपर्स. क्योंकि सॉल्व करना इज़ नॉट जस्ट, आई मीन मॉक टेस्ट को सॉल्व करना सब कुछ नहीं होता है. इट इज़ जस्ट वन स्टेप. आई बिलीव दैट जस्ट 40% ऑफ द थिंग. उसके बाद का जो स्टेप होता है वो एनालिसिस पार्ट जो होता है कि whenever you are solving a mock test, so you have to make a register or something and you have to see things कि आपके questions कहाँ गलत हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रिवाइज करने की ज़रूरत है. यू हैव नॉट रेड योर सोर्स प्रॉपरली, सो यू नीड टू रिवाइज दैट थिंग. नंबर 2 मिस्टेक दैट वी डू इज़ कि हम ऐसी ब्लाइंड गेसेस ले लेते हैं कभी कभी. यू हैव टू ऑल टेस्ट इट इन योर मॉक टेस्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे कुछ भी ब्लाइंड गेस, तो आपको रियलाइज तभी होगा जब आप एनालिसिस करेंगे कि मैंने क्वेश्चन क्यों गलत किया. सो जस्ट मेक दैट रजिस्टर एंड नोटबुक और वट एवर कि एनालाइज करने के लिए कि कहाँ कहाँ हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. एंड थर्ड इज़ रीडिंग द सोल्यूशन पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज जो 40 पेजेस, विजन का आई थिंक 32 to 40 पेजेस होता है आराम से.
एंड उसमें काफ़ी लोग होते हैं जो 1 घंटे में ही एनालिसिस कर लेते हैं. हाउएवर मैं 3-4 घंटे मुझे लगते थे उसको प्रॉपरली सोल्यूशन को पढ़ने में एंड वैल्यू एडिशन करने में. मेरा सिर्फ एक मोटिव रहता था कि जब मैं प्रीलिम्स में बैठूं तो मेरा नॉलेज बेस इतना हो कि मैं एलिमिनेट कर पाऊँ ऑप्शंस को. माई फोकस वॉज जस्ट ऑन एलिमिनेशन. देर आर 3 काइंड ऑफ क्वेश्चन, काफ़ी सारे काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में. एक तो 30 to 35 क्वेश्चन विल भी जो आपको डायरेक्ट आते होंगे. इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एंड यू हैव रेड योर सोर्सेज प्रॉपरली, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक रिसोर्सेज या करंट अफेयर सोर्सेज अगर आपने पढ़े होंगे, 30 to 35 क्वेश्चन विल भी लाइक कि जो आप ईजिली कर लेंगे. लेकिन उसके गेम एक्चुअली उसके बाद स्टार्ट होता है. कट ऑफ आपका उसके बाद क्लियर, जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वो क्लियर करवाते हैं. तो 60 to 65 क्वेश्चन अब आपको अटैम्प्ट कैसे करने हैं या देखने कैसे हैं आपको, तो वो आपकी एलिमिनेशन ट्रिक्स या आपने जो वेग नॉलेज पढ़ी होगी. इफ़ यू हैव बीन अ कंसिस्टेंट एंड अ रेगुलर रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा यार मैंने तो पूरा साल पढ़ा है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कहीं भी न्यूज़ में. यू विल एलिमिनेट दैट ऑप्शन. कुछ आपने PYQ एनालिसिस देखा होगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जनरली गलत होती है. फॉर एग्जाम्पल इस बार भी देवर आई थिंक 3-4 क्वेश्चन थे जो आंख बंद करके भी कर सकते थे. देवर सम वाले क्वेश्चन, नन एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट्स थे काफ़ी. इस बार ऑप्शंस का पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन स्टेटमेंट्स का पैटर्न तो वही है ना. द पेपर जो सेटर है वो तो सिमिलर कॉन्सेप्ट को एंड सिमिलर चीज़ पैटर्न को लगा के वो ऑप्शंस बना रहे हैं ना. आई मीन द स्टेटमेंट्स. तो आपको वो स्टेटमेंट समझनी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि किस टाइप से वो क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे वो स्टेटमेंट्स को गलत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट चैप्टर है. अगर मुझे वहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म करना है तो एग्जामिनर के पास भी तो कुछ लिखा हुआ होगा ना, वहाँ से वो क्वेश्चंस बनाएंगे एंड उनको उस स्टेटमेंट को गलत करना है. तो थिंक लाइक दैट कि वो कैसे गलत कर सकते हैं. एंड ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसे अलग से भगवान आके कुछ देके जाएंगे. जब यू रियलाइज, जब यू रीड द PYQs, एनालाइज इट 5-6 बार, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ यार ऐसे होता है. एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट. फर्स्ट टाइम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे थोड़ी ना होता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स या माइंडसेट पढ़ना. बट जब आप PYQ को एक लेवल के बाद आई मीन पढ़ लेते हैं तो आपको ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. सो मॉक टेस्ट, PYQs, लिमिटेड रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल द स्टैटिक रिसोर्सेज जो भी हैं एंड द करंट अफेयर्स जो हैं लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जो भी इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, द मार्केट इज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ मटेरियल्स ऑफ करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस. हमें क्या लगता है कि हमने विजन की पढ़ ली, पर हमें वो फोमो होता है कि नहीं नहीं यार, आई मीन कि मेरा फ्रेंड तो कुछ और पढ़ रहा है या कुछ और उसने बता दिया कि नहीं नहीं मैं तो इनसाइट्स का कर रहा हूँ या कुछ और, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम तो कहीं पीछे छूट रहे हैं. सो वी हैव टू रीड दैट इनफ. तो हम सेकेंड सोर्स फॉलो करना शुरू कर दें, लेकिन हमारे में एक्चुअली कुछ एक भी ढंग से नहीं हो पाता है. एंड दैट इज़ द की टू क्लियर प्रीलिम्स कि अपने रिसोर्सेज को प्लीज़ लिमिट कीजिए अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो. सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रीलिम्स. आई थिंक अगर आपको कुछ पूछना है प्रीलिम्स रिलेटेड तो आई थिंक यू कैन आस्क, बिकॉज आई थिंक कि प्रीलिम्स इज समथिंग दैट सबको डराता है. प्रीलिम्स स्टेज तो है. मुझे भी दिस ईयर आई अटेम्प्टेड 94 क्वेश्चंस. Yes. In my second attempt, first attempt तो I just gave, जैसे सब बोलते हैं कि देखने के लिए, and that was the biggest mistake that I did. I just did लक्ष्मीकांत and उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, but just to see that paper मैंने attempt दे दिया. ये attempt का importance आप उससे जाके पूछिए जिसका last attempt था, and unfortunately he or she could not clear it. They will tell you the importance of one attempt. ऑल्सो क्या होता है जनरल कैंडिडेट्स के साथ कि जब 3 अटैम्प्ट्स होते हैं ना, तो वी थिंक कि अभी तो बहुत अटैम्प्ट है, एक ना एक अटैम्प्ट में तो हो ही जाना है हमारा. बट जब थर्ड अटैम्प्ट खत्म होता है ना, यू स्टार्ट फीलिंग द हीट ऑफ द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो आपके पास हैं. तो फोर्थ अटैम्प्ट में ऐसा लगता है कि वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि अब तो सिर्फ 3 बचे हैं, 2 बचे हैं. सो प्लीज़ सबसे पहली चीज़ तो अपना जो अटैम्प्ट दे रहे हैं प्लीज़ ऐसे वेस्ट मत कीजिए जस्ट देखने के लिए. देखने हैं तो बाहर एग्ज़ाम के बाद ही पेपर आ जाता है, खुद आप चेक कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ सेकेंड अटैम्प्ट. व्हेन आई गिव माई सेकेंड अटैम्प्ट, मैंने सिर्फ 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए. आई वॉज फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी एंड मैं बड़ा सेफ खेल रही थी उस प्रीलिम्स में, एंड आई मिस द कट ऑफ. थर्ड अटैम्प्ट आई डिड द सेम मिस्टेक. I just attempted 78 questions. And then after third attempt, I realized that why am I doing this? Why am I not taking risk? या मैं इतनी रिस्क अवर्स क्यों हो रही हूँ? And then I analyzed, मैंने वो मॉक्स में अप्लाई किए एंड मैंने रियलाइज़ किया दैट आई जनरली अटैम्प्ट 85 to 90 के क्वेश्चन जब मेरा बेस्ट रेंज होती है, जब आई कैन मैक्सिमाइज माई स्कोर टू अबव 100 और समथिंग. बट जब मैं प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में गई एंड वी रियलाइज दैट द पेपर इज़ वेरी वेग, nobody knows. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बड़े डिफरेंट आंसर्स दे रहे थे. At that moment I decide कि I have to go 90 plus anyhow if I want to clear this exam, this prelims exam. So I attempted 94 questions. So also ये आप मॉक टेस्ट में प्लीज़ एक बार देख लीजिए कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है. काफ़ी लोगों का होता है कि उनकी नेगेटिव मार्किंग बड़ी हो जाती है. सो प्लीज़ चेक योर सेल्फ कि आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं या नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे. आई चेंज्ड माई स्ट्रैटेजी टू नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स एंड आई कुड क्लियर इट. इस बार मेरे प्रीलिम्स में 98 मार्क्स है
वेल अबव द कट ऑफ, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा प्रीलिम्स आई थिंक, क्योंकि मेरे 100 रेंज में आ रहे थे जब मैंने काफ़ी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया. एंड दिस वॉज द स्ट्रैटेजी या चेंज जो मैंने किया, दैट वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी. एंड मेन्स एंड इंटरव्यू तो मेरा फर्स्ट ही था, सो दैट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज फोकस्ड ऑन माई मेन्स प्रेपरेशन. तो मेन्स मैंने कभी नहीं छोड़ा, एंड प्रीलिम्स में मैंने ये स्ट्रैटेजी चेंज की थी इस बार. And in aspect of previous year analysis, what special you did this year? Previous year questions में what I did was, earlier this was also the mistake that I was doing कि मैं PYQ को analysis अच्छे से नहीं कर रही थी. I was just seeing कि हाँ ये question है, ये answer है, and I was in a testing mood कि मेरे कितने marks आ रहे हैं. However इस साल 2011 onwards तो very judiciously, very religiously मैंने हर एक question को उठाया. मैंने उसमें patterns identify किए कि किस टाइप की statements गलत होती हैं. आप देखोगे कि वो डेट को चेंज कर देते हैं या फिर कोई एक प्लेस है उसको चेंज कर देते हैं. इट्स वेरी इजी फॉर देम टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग. तो आपको वो, जब आप PYQ उसको देखोगे तभी आपको वो समझ आने वाला है. सेकेंड थिंग इज़, इसी उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि वो ऑप्शंस कैसे फ्रेम करते हैं. इस बार दो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आई एक्चुअल उसमें. हाउएवर इट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस जब मैं प्रीलिम्स एग्जाम हॉल में एंटर कर रही थी दैट आई हैड डन इनफ, एंड आई थिंक इससे ज़्यादा तो मुझसे नॉलेज बेस इंक्रीज नहीं होगी. दिस वॉज द लिमिट दैट आई कुड डू, and this is the thing that I have to perform my best in this prelims. So आप तो एक तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज आई आइडेंटिफाइड थीम्स, और मैंने ऐसे सेपरेट नोट्स बनाए थे. जैसे प्रीलिम्स में स्टैटिक बुक्स के अलावा भी आपको बहुत कुछ करना होता है. जैसे नेशनल पार्क्स आपको करने होते हैं, वेटलैंड्स का क्वेश्चन हमेशा आता है तो आपको वो प्रिपेयर करने होते हैं. सिमिलरली सेपरेट नोट्स ऑन द रिवर्स आपको बनाने पड़ते हैं. ऐसे जो मिसलेनियस चीज़ें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यू वुड नोटिस व्हेन यू विल एनालाइज अ PYQs कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वो हमेशा गलत फॉर्मेशन ईयर डालते हैं. ऑलमोस्ट ऑल केसेस में, हमेशा तो नहीं बोल सकते बट 90% केसेस में वो होता है. तो अगर आपको, आपके अटैम्प्ट कम है लेकिन आपको रिस्क लेना है, सो यू कैन टेक रिस्क उस एस्पेक्ट में, तभी आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट को बढ़ा सकते हैं. अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसने भी इस एग्जाम को क्लियर किया है कि उसको इतने सारे क्वेश्चन आते हो कि वो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर ले. 30 इज़ द मैक्सिमम लिमिट. 35, अगर कोई आप सीरियस एस्पिरेंट है तो 35 क्वेश्चंस विल बी द द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर होंगे कि ये तो मेरे गलत नहीं होने वाले. लेकिन उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, जैसे PYQs या मॉक टेस्ट के थ्रू या वेग नॉलेज या पेरिफेरल नॉलेज जो है वो आपकी काम आती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं. नहीं, मैंने न्यूज़पेपर से, एज इन, yes, one more thing that I would like to address is, everybody says that you have to summarize the article. If the article is of 1,000 words, then you have to write it in 100 words. I think that this was the most rubbish thing that I've ever heard in my prelims preparation journey. आप यहाँ पर समराइज या फिर कुछ ऐसे राइटर बनने नहीं आए हैं. यू आर वेरी क्लियर कि आपको न्यूज़पेपर से उठाना क्या है. ये आप तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपको आंसर्स में क्या डालना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी इंट्रोड्यूस आवर आंसर, तो इंट्रोडक्शन के काफ़ी सारे तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन से, कॉन्टेक्स्ट से कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, कोई फैक्ट है, कोई डेटा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आर्टिकल आया है इनइक्वालिटी पे, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का उसमें डेफिनेटली मेंशन होगा, तो आप वो सिर्फ एक वो लाइन उठाइए. आप उसमें, आपको पूरा आर्टिकल देखने की ज़रूरत नहीं है. आपको आंसर्स में कुछ ही चीज़ें डालनी होती है. एक तो ऐसे डेटा डालना हो गया, कोई रिपोर्ट आ गई, या फिर किसी चीज़ के पॉजिटिव, नेगेटिव्स, या फिर कॉजेज़ या कॉन्सिक्वेंसेज. फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार. तो अगर आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किसी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया होगा कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड. अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें से वो 4-5 पॉइंट्स उठाइए जो भी उसमें पॉजिटिव दे होंगे. फिर 3-4 दिन बाद दोबारा उस पर आर्टिकल आएगा कि नेगेटिव्स क्या है, तो पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना. सिर्फ आप उसको नेगेटिव्स वाला जो भी 3-4 पॉइंट्स है सिर्फ वो डालिए. तो ऐसी स्टेटमेंट्स उठाइए. आपको पूरा समराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट हियर कि आप यहाँ कुछ ऐसे राइटर बनने आए हैं या समथिंग. इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस टू राइट एन आंसर, आई बिलीव. तो पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको उस आंसर में लिखना क्या होता है. यू हैव टू राइट द कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू राइट द डेटा, द फैक्ट्स, द प्रोज, द कॉन्स, द कॉन्सिक्वेंसेज एंड एवरीथिंग. सो डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर. आई मीन कि हर एक ऐसे डेट वाइज बना रहे हैं, अपनी एक बुकलेट निकाल रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं. ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट पिक अप सम पॉइंट्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, एंड उसमें ऐसे, मैंने जो था वो डॉक्स में ऐसे अपनी फाइल्स बनाई थी पॉलिटी के लिए, देन इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी टुगेदर, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बनाई थी. फॉर एग्जांपल, इंडिया US पे कोई क्वेश्चन आया तो मैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगती थी सिर्फ वो वाली लाइन उठा के डाल दी. किसी में ट्रेड वैल्यू दी होती है तो आपने वो फैक्ट डाल दिया, या फिर इंडिया US में अभी क्या चल रहा है ऐसे डाल दिया. तो पिकअप सम थिंग्स, एंड सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. तभी मैं बोल रही हूँ कि जब तक आप सिलेबस इन PYQs को अच्छे से नहीं देखोगे, यू विल नॉट गेट द डायरेक्शन एंड यू विल आस्क एवरीबडी, और आपको कोई नहीं बता पाएगा एक्चुअली में कि करना क्या है. अब वो आपके कॉन्शियस से ही वो चीज़ आएगी
जब when you will analyze the PYQs and when you will go through the syllabus every day, just एक बार देखते जाओ, ऐसे एक हैबिट बना लो कि सिलेबस बस देखना है. अभी आप बिगनर्स हो, आपको नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अभी सिलेबस की. आपको ऐसे लगेगा कि हाँ सब कुछ ही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा यू विल गेट मोर रिफाइंड इन टू इट. आपको समझ आने लगेगा कि ठीक है. एंड अभी के नोट्स तो आपको काम भी नहीं आने वाले, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप देखो उन चीज़ों को, ताकि जब तक आपका टाइम आएगा ना, आई मीन अक्टूबर नवंबर वाला टाइम आएगा, तब तक यू विल बी इन अ वेरी गुड स्टेज. और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्रेंड से या किसी टीचर से कि करना क्या है. बट वो तभी हो पाएगा अगर आप अभी सही डायरेक्शन में शुरू करेंगे. तो प्लीज़ डू दैट. सिलेबस एंड PYQs आई थिंक very very important. And what should be the broad framework for the 50 days ahead, especially for these prelims? इसमें जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, नंबर 1 थिंग इज़ अटेम्प्ट द मॉक्स जितने हो सकते हैं. मैंने 40 मॉक्स दिए थे. आई वाज लाइक कि ये मेरी लिमिट है. मैंने उस 40 मॉक्स में एक तो आपको वो समझ आ जाना चाहिए, यू हैव टू डेवलप द नैक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. तो जब तक भी आपको वो नहीं आती, आप सॉल्व करते रहिए. मेरे लिए वॉज द 40 वाला लिमिट. आई स्टॉप्ड देयर 40 मॉक्स में. उसके बाद में मैंने PYQs को एनालाइज किया और उसको बार बार रिवाइज़ किया, ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. अब क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्टर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं कि हाँ ऐसे एलिमिनेट होगा, ओनली देख लिया तो गलत ही कर देंगे वहाँ पर. तो ऐसे ही हमेशा बैकफायर करता है. तो आपको ये इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि ओनली देख के, नन देख के ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते हैं. यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द एग्जामिनर. सो जिसके जो भी इस वाला अटैम्प्ट दे रहा है इस साल वाला, सो आई थिंक मॉक्स कीजिए जब तक आप वो नैक नहीं डेवलप करते, आर्ट नहीं डेवलप करते आंसर आई मीन लिख के आने की. सेकेंड थिंग इज़ PYQs. एंड जो भी आपने स्टैटिक रिसोर्सेज पढ़े हैं उसको प्लीज़ बहुत बार रिवाइज़ कीजिए. दिस इज़ द टाइम टू रिवाइज थिंग्स एंड नॉट पिक अप सम न्यू थिंग्स. अगर आपका थोड़ा बहुत बचा है तो आप वो कर सकते हैं टाइम निकाल के. हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपने पढ़ा है, आपके जो पढ़े हुए रिसोर्सेज हैं वहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए आपके. वहाँ आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर जानी चाहिए. अगर 4 क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से आ रहे हैं तो 4 के 4 सही होने चाहिए. लक्ष्मीकांत इन समथिंग दैट यू हैव टू रिवाइज इट एन नंबर ऑफ टाइम्स. और एक और चीज़ मैंने जो रियलाइज़ की कि सिलेक्शन कभी भी टफ क्वेश्चंस की वजह से नहीं रुकता है. इट विल नेवर हैपन कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं हुआ कि आपको टफ क्वेश्चंस नहीं आए. इट विल ऑलवेज भी आपने ईजी क्वेश्चंस गलत किए. आपको जो क्वेश्चंस आने चाहिए थे, आपके कंपटीशन को जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं, आपने वो चीज़ें गलत की. और ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि रिवाइज करो जितनी बार कर सकते हैं आपने जो स्टैटिक सोर्सेज है. तो तीन ही पिलर है मेन. तो स्टैटिक, PYQ एंड मॉक्स, जस्ट डू दैम वेरी वेरी रिलीजियसली एंड डोंट आस्क एवरीबडी कि क्या होता है क्या नहीं होता है. सब यही फॉलो करते हैं. कोई ऐसे यहाँ पर मास्टर नहीं होता है कि सब कुछ सबको आता है. यही चीज़ें सीख के प्रीलिम्स को क्लियर किया जाता है. एंड जस्ट फोकस ऑन सिट विद द PYQs डेली एंड देखो कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं कैसे कर सकता था, कैसे इसका आंसर आया, कि अब कॉमन सेंस कैसे मैं उसको अप्लाई कर सकता था. जब आप यहाँ कॉमन सेंस अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तभी आप उस इतने प्रेशर कंडीशन में आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे. सो दिस इज़ वॉट आई थिंक शुड बी द रोड अहेड. मैंने क्या किया था, जो भी वो बताते हैं ना, सो आई यूज टू फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस रिवर है, तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर ली. जो भी उन्होंने बताया कि वो ऐसे ही शुरू करते हैं, तो ऐसे उनकी वो बना ली, ऐसे खुद बनाए थे मैंने. एंड देन यहाँ पर जो भी नेम्स हैं वो आपने नोटिस कर लिए, वो आपने रिवाइज कर लिए. एंड देन इस पेज को रिवाइज किया था. अदरवाइज मैप्स में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अवेलेबल है कि आपको कुछ नहीं याद होता, और याद हो भी गया तो भूल जाते हैं नेक्स्ट डे. तो कॉपी पे मैंने ऐसे बनाए थे. सिमिलरली मैंने जो वेटलैंड्स वाला चीज़ है उस पर जस्ट पिकअप इंडिया का मैप जो भी है, एंड देन वहाँ से यहाँ पर उसको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए एंड यहाँ पर उसको जस्ट लोकेट कि कहाँ कहाँ पर है. एंड देन मैप को देखते जाइए. जिस दिन मेरा प्रीलिम्स था उस दिन मैं सारे मैप्स देख के गई थी. एंड थैंकफुली क्वेश्चंस वर देयर. यूक्रेन वाला क्वेश्चन था, बॉर्डरिंग वाली चीज़ें, एंड बाकी चीज़ें भी थी. देयर वाज दिस हिल्स वाला क्वेश्चन था. तो एक तो होता है कि आप बने बनाए मैप से सब कुछ प्रिपेयर कर लिए. एक होता है जस्ट प्लेन मैप लीजिए एंड देन खुद लोकेट कीजिए. ऐसे ही हिल्स में आप ऐसे ऐसे हिल्स बना सकते हैं ताकि वो आपकी माइंड में रहे. जो आप हाथों से चीज़ें करते हैं ना, वही चीज़ें आपको वहाँ याद आने वाली हैं. तो आप ऐसे कर सकते हैं उस चीज़ को. आई थिंक एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम, हाउ टू डाइजेस्ट फेलियर. आपने 3 बार फेल हुई थी आप, तो उसको कैसे करना है? I mean, I was very focused and in fact जब मेरा थर्ड प्रीलिम्स नहीं हुआ था, आई वाज लाइक कि कैसे होगा, फर्स्ट स्टेज ही नहीं हो रहा है अभी तो. बट आई थिंक इस टाइम पे आपको किसी का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है. इट वाज माय मदर हु हैज़ कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड मी इन एवरी स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन. तो उन्होंने कभी मुझ पर डाउट नहीं किया एंड शी वाज ऑलवेज लाइक कि नहीं यू गो अहेड,
अभी तो अटेम्प्ट्स हैं, वाई आर यू सो स्कैर्ड अबाउट कि नहीं होगा या नहीं होगा. तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं. मैं आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे यही एग्जाम करना है. फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई वॉज वेरी क्लियर that I have to attempt this paper, and अगर मेरा इस साल भी नहीं होता I will again attempt this paper. So I was very clear in this. तो failure से failure को accept करके किसी और ऑप्शन के मेरे पास ऑप्शन नहीं था. मैंने कभी अपने आप को ऑप्शन नहीं दिया किसी स्टेट PCS का एग्जाम दे दूँ मैं या कोई और एग्जाम दे दूँ. आई वॉज वेरी वेरी क्लियर, फेलियर हो कुछ भी हो, जब तक मेरे पास एफर्ट्स जब तक मैं लगा सकती हूँ आई विल डू दैट. सो यू हैव टू डेवलप दैट मेंटालिटी कि नहीं नहीं अगर आपको करना है तो यू हैव टू डू इट नो मैटर वॉट, नो अदर ऑप्शन. मैंने कभी अपने आप को ये ऑप्शन नहीं दिया ऐसे सोचने का. ठीक है, जब रिजल्ट नहीं आता 1-2 दिन सब सैड रहते हैं कि ये सबको ऐसे डीमोटिवेशन होता है, बट 1-2 दिन के बाद बाउंस बैक, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन आई थिंक. तो ऐसे आप कर सकते हैं. आई मीन साइंस एंड टेक के लिए मैंने PT 365 की थी एंड मेंस के लिए मेंस 365 की थी. आई थिंक इससे ज़्यादा आपको साइंस एंड टेक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. आप तो विजन IAS के स्टूडेंट्स हैं. यहाँ के जो टीचर्स हैं आई थिंक अभी उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रही, बट जो भी आपके टीचर्स हैं यहाँ पर जस्ट तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही रहेंगे ना यहाँ पर. जस्ट रिवाइज योर क्लास नोट्स अच्छे से. एंड करंट अफेयर्स के लिए आपकी PT की क्लासेस भी होती हैं यहाँ पर, तो आपको खुद भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट उन क्लासेस को देख सकते हैं. तो दैट सॉरी उसी को रिवाइज कीजिए. आई मीन रिवीजन इज समथिंग आप नहीं एस्केप कर सकते इस चीज़ से, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा. How did you prepare for CSAT examination? CSAT में आई एम डेफिनेटली नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू, क्योंकि मैंने मैथ्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन किया है. एंड मैंने CSAT में कभी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी 8-10 दिन से ज़्यादा कभी CSAT को नहीं दिए हैं. एंड थैंकफुली मेरा हर अटैम्प्ट में CSAT क्लियर हुआ है. तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? सॉरी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? क्वेश्चंस में आई थिंक 50 to 55 का रेंज होता है. मेरा कभी 55 से ऊपर रेंज नहीं गया क्योंकि टाइम लिमिट इतना ज़्यादा होता है. इनफैक्ट आई एम अ मैथ्स ग्रेजुएट, ऑनर्स मैंने मैथ्स में की है. आई हैव ऑल थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट, बट स्टिल मुझे इस बार का मैथ्स वॉज वेरी वेरी टफ. आई मीन व्हेन आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चंस, एक तो क्या हो रहा था इस बार CSAT में कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे एक तो टाइम जा रहा था एंड देन आंसर भी नहीं आ रहा था. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर क्लियरिंग CSAT. ऑल्सो CSAT में एक चीज़ है कि आप किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते. इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में मेरे आई थिंक ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही हुए हैं इस साल, एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. लेकिन मैंने कभी किसी एक चीज़ पर रिलाई नहीं किया. आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ ठीक ठाक करनी पड़ेगी. आप कोई मैथ्स पोर्शन कम्प्लीटली छोड़ के नहीं जा सकते. तो आप आई मीन जिसने CSAT पे ज़्यादा फोकस किया है प्लीज़ उससे पूछे. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट CSAT. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैम, Hello, ma'am. हेलो, Congratulations. थैंक यू सो मच. I wanted to ask that you said you just read the monthly magazines and then preferred PT and mains 365. Then why reading the monthly magazines at the first place? Because when you're just reading it, then you will not remember it for the whole year. Something you just read without making notes. So was reading monthly magazines any helpful? And डेफिनेटली इट वॉज हेल्पफुल. रिमेंबरिंग मेरा कभी मोटिव था ही नहीं व्हेन आई वाज रीडिंग द मंथली मैगजीन्स. मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि जो भी मंथली मैगजीन्स या जो भी मंथ में करंट अफेयर्स आ रहे हैं एटलीस्ट आई शुड बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट कि क्यों वो चीज़ें हुई, कॉन्टेक्स्ट क्यों हो रहा है, कैसी चीज़ें हुई. क्योंकि जब आप वही चीज़ PT में पढ़ते हैं ना तो PT में यू डोंट हैव टू कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत नहीं होती है या प्रॉज एंड कॉन समझने की ज़रूरत नहीं होती है. तब आपको मेमोराइज वाले मोड में आप जाते हैं. लेकिन जब आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स को पढ़ते हैं तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और वो आपकी चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है. एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म मेमोरी इज समथिंग एंड द पेरिफेरल नॉलेज इज समथिंग जो आपको एक्चुअल प्रीलिम्स में हेल्प करती है. तो डोंट बी लाइक कि आज मैं करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ा तो मुझे उसका बिल्कुल रट्टाफिकेशन करना है एंड यू हैव टू मेमोराइज. अदरवाइज तो योर प्रिपरेशन जर्नी विल बिकम हेल, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप मंथली मैगजीन्स को ऐसे याद करने बैठ जाएंगे, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट इन द मंथली मैगजीन जो कि अवेलेबल होता है. तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं मंथली मैगजीन्स पढ़ूंगी ताकि आई वॉज अवेयर अबाउट द थिंग्स जो उस टाइम पे हो रही थी. एंड जो मेमोराइज वाला पार्ट है आई विल डू दैट व्हेन द PT एंड द मेंस 365 विल कम. सो इसीलिए एक और चीज़ है, अगर आप मंथली मैगजीन्स बहुत रिलीजियसली पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इवन वन ऑफ माई फ्रेंड व्हाट शी वाज डूइंग इज जब हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे तो शी यूज़ टू रीड मंथली मैगजीन्स वेरी वेरी आई मीन रिलीजियसली एंड रेगुलरली. ऐसे दिन में 3-4 घंटे एलोकेट करके बिल्कुल अच्छे से वो करती थी. तो अगर आप मंथली मैगजीन्स को बहुत अच्छे से करें तो PT एंड मेंस करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप मंथली मैगजीन जैसे कैजुअल रीडिंग कर रहे हैं टू मेक योर सेल्फ अवेयर एंड अबाउट
बाकी चीज़ों के बारे में सोच के, तो फिर आपको पीटी एंड मेंस करने की ज़रूरत है। तो आप खुद सोचिए कि आप किस में कंफर्टेबल है, या तो आप डेली ऐसे अलॉट कीजिए कुछ आवर्स अपने मंथली मैगजीन्स को, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन रिलाई ऑन द पीटी एंड मेंस 365, क्योंकि आप करंट अफेयर्स को छोड़ के नहीं जा सकते। आई मीन यू हैव टू, क्योंकि जो ईजी क्वेश्चन सब सही कर रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा इस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, तो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन ईजी क्वेश्चन। तो ऐसे आप कर सकते हैं जैसे भी आपको सूट करता है। सॉरी, आई वॉज फॉलोइंग मंथली हर अटेम्प्ट में, ऐसा कोई नहीं था कि मैंने मंथली छोड़ दी। सो मैम ये जो अवेयरनेस वाला पार्ट है ये न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा ना? आई मीन न्यूज़पेपर से तो हो ही जाता है, तो then अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, लेकिन मंथली मैगजीन सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर थोड़ी ना फॉलो करके बनाई जाती है। आई मीन इट फॉलोज, इफ़ आई वाज रीडिंग हिंदू जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, बट मंथली मैगजीन्स में तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़े होते, सो वो एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करने के लिए आई मीन आप पढ़ सकते हैं मंथली मैगजीन्स। और अगर आप मंथली मैगजीन्स पे ही रिलाई कर रहे हैं, आई मीन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, देन डोंट रिलाई ऑन पीटी एंड मेंस। इट्स वेरी सिंपल। जो भी आपको सूट करता है आप जस्ट सी कि आई मीन यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे ना वो सब आपको अपनी चीज़ें बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है। सो आपको सी यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट, सम ऑफ यू हैव डन जॉब्स ऑलरेडी, सो यू आर नॉट समबडी जो नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं। हमने 10th पास आउट की है, 12th पास आउट की है, ग्रेजुएट्स हैं, तो आपको जस्ट थिंक कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले जस्ट सोचो कि क्या ये मेरी चीज़ से मैच कर रहा है। इफ़ इट इज़ मैचिंग देन आई थिंक एक्सेप्ट इट एंड इनकॉर्पोरेट इनटू योर ओन स्ट्रैटेजी। And what about other current affairs sources like PIB, Yojana, Kurukshetra, like other toppers? नहीं, मैंने कुछ नहीं फॉलो किया था। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू दोज पीपल जो फॉलो करते हैं इतने 10 करंट अफेयर्स मैगजीन्स एंड स्टिल दे वर वेरी वेरी श्योर अबाउट करंट अफेयर्स। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं 10 ऐसे मैगजीन कर लूँ। आई वॉज फॉलोइंग हिंदू, जिसमें मैंने रिलीजियसली 1.5 आवर्स दिए हैं हमेशा। मैंने कभी न्यूज़पेपर नेग्लेक्ट नहीं किया। उसके बाद में स्टैटिक भी करना होता है, PYQs भी करना होता है। सो दैट इज़ व्हाट आई सेड दैट यू आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप इन दिस प्रिपरेशन, कि कहाँ पर किस लिमिट तक आपको जाना है। तो मैंने कभी नहीं फॉलो किए, कभी भी नहीं किए। आई मीन जो करते हैं आई थिंक आप उनसे पूछ सकते हैं, बट आई नेवर फॉलोड ऑल दीज थिंग्स एंड मुझे लगता भी नहीं है कि इनकी इतनी ज़रूरत है। आपको यहाँ पर मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन नहीं बनना है। यू हैव टू गैदर इनफ नॉलेज टू क्लियर दिस एग्जाम। तो जस्ट बी वेरी ऑब्जेक्टिव, बी वेरी स्ट्रेटेजिक टू क्लियर दिस एग्जाम आई थिंक। मैम प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? Yes, the thing that I was telling you ना कि दिसंबर तक you have to follow your integrated strategy। तो मेरा क्या था, मैंने PSIR के लिए कोचिंग ली हुई थी, तो मेरा दिसंबर तक मैंने ऑप्शनल वॉज समथिंग दैट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मेरे प्रीलिम्स से पहले, क्योंकि मैंने अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी ज़्यादा डेवलप की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस के थ्रू, आई यूज़ टू रिवाइज माई ऑप्शनल, और मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक आई गेव माई 80% ऑफ द टाइम टू माई ऑप्शनल। एंड जस्ट मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और कोई एक एथिक्स उठा लिया या कभी ऐसे वन मंथ डेडिकेट कर दिया एक GS सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने ऑप्शनल अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। तो नोट्स मैंने नहीं बनाए थे बिफोर द प्रीलिम्स। आई वाज लाइक कि मेरा प्रीलिम्स होगा तो 3 महीने आई वाज वेरी, और प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना तो आप बड़े डेडिकेटेड रहते हैं। योर मोटिवेशन लेवल इज समथिंग जो बहुत ही एकदम शूट कर जाता है कि यू हैव टू क्लियर मेंस, एंड देन वो रहता है कि पता नहीं बाद में कब ऐसे मेंस लिखने का मौका मिलेगा। सो मैंने क्या किया कि जो 3 मंथ्स थे उसमें जो मेरा फर्स्ट मंथ था उसमें मैंने ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट आई हैव टू सी कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, एंड वो मैंने शॉर्ट नोट्स में डाली। एंड सेकंड थिंग इज ऐसे वो समथिंग जो मैंने पहले नहीं किया था, एंड आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। इस बार ऐसे में आई गॉट जस्ट 100 मार्क्स, एंड आई वाज सो शॉक्ड व्हेन आई लुक्ड इनटू माई मार्कशीट, क्योंकि मेरे ऐसे में मॉक्स में सबसे मतलब अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे। एवरेज ही मेरे 110 थे, उससे प्लस ही थे। तो व्हेन आई सॉ देन आई रियलाइज कि प्लीज़ फोकस ऑन ऐसे। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में काफ़ी टाइम रहता है, आप ऐसे आराम से कवर कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तो स्मृति मैम पढ़ाती हैं, शी इज़ द बेस्ट इन ऐसे। आई मीन हाउ आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू मी? स्मृति मैम के स्टूडेंट्स हो गए, शी इज़ रियली बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऐसे, इन दी एनेक्डोट्स एंड द स्ट्रक्चर दैट शी टेल्स। मैंने उनके नोट्स भी देखे थे ऐसे में, तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो तभी मैं बोल रही हूँ ना कि दिसंबर तक यू हैव टू कंप्लीट योर GS एंड योर ऑप्शनल। आई मीन GS में जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एथिक्स का फाउंडेशन आप अपना बना के रखिए दिसंबर तक। और जो वैल्यू एडिशन है इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आप करते हैं, फॉर एग्जांपल बेटर इंडिया वेबसाइट पे जाके 10 IAS ऑफिसर्स के ऐसे नाम उठा लिया और उनको यूज़ किया। को 100 IAS ऑफिसर्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 10 उठाइए एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए। सेकंड थिंग इज़ वैल्यू एडिशन में जो आता है, जो आप प्रीलिम्स के बाद करेंगे, एटलीस्ट जो मैंने किया। सेकंड इज़ दैट जस्ट टाइप ऑन गूगल या यूट्यूब पे 10 लेसन्स फ्रॉम महाभारता और रामायण,
या फिर कुछ ऐसी ऐसी, और देयर इज़ ए सम यूट्यूब वीडियो, आई मीन यूट्यूब चैनल है फिलोसफी ऑफ लाइफ, आई एम नॉट अवेयर अबाउट मतलब एग्जैक्टली क्या नाम है उसका, उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ऑल्सो जस्ट मेंशन की इंटीग्रिटी टॉपिक है, उसको मेंशन कर दिया, एग्जाम्पल्स उसके आगे ऐसे सर्च कर लिया, काफ़ी सारी वीडियोस आ जाती है. ऐसे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. तो वैल्यू एडिशन आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कर सकते हैं. एंड फाउंडेशन और जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आपको पहले प्रीलिम्स के पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 महीने के टाइम में आप फ्रेश बिल्कुल एकदम से मेंस ऐसे, मतलब मुझे तो ऐसे डिफिकल्ट लगता था. तो मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही था कि अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाए सो आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हाट्सो एवर कि मेरा मेंस रुके. सो आई वाज वेरी श्योर अबाउट दैट, और दिसंबर तक मैंने मेंस पे फोकस किया. इनफैक्ट जनवरी में भी आई वाज डूइंग माई आंसर राइटिंग फॉर माई ऑप्शनल. तो मैंने तो इस बार प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आई स्टार्टेड फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स, एंड जनवरी तक आई वाज मेंस स्पेसिफिक, आई वाज डूइंग आंसर राइटिंग, आई वाज स्टार्टिंग माई ऑप्शनल एंड एवरीथिंग. तो आप ऐसे कर सकते हैं. आई मीन जस्ट मेक श्योर कि आप 70 to 80% ऑफ द सिलेबस है ना जो आपका मेंस का, वो आप दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट कीजिए. एंड देन जो 3 महीने होंगे उसमें आप टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का टाइम अगर आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे आंसर्स लिखे थे, बट मैंने जो मेन टेस्ट सीरीज़ जो थी वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही ज्वाइन की थी. तो प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ इंप्रूवमेंट का टाइम रहता है, या कोई छोटे मोटे टॉपिक्स हो गए जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह या ये सब, उनको करने का टाइम होता है. आप सब कुछ 3 महीनों में आई डोंट थिंक सो कि आप कर सकते हैं. आपने दिसंबर तक आंसर राइटिंग करा था, मतलब कितने आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे करेंगे? आई वॉज फोकसिंग ऑन PYQs. जो ऑप्शनल के मेरे आंसर्स थे वो मैंने 5 साल के सारे PYQs लगा रखे थे, जो ऑप्शनल के थे मेरे. दिसंबर में, जनवरी के एंड तक मैं PYQ की आंसर राइटिंग करती थी. इनफैक्ट फॉर द GS में भी आई वॉज प्रिपेयरिंग मॉडल आंसर्स. ऑल्सो आंसर राइटिंग में एक चीज़ और होती है दैट करना कैसे है, और या PYQs कैसे देखने हैं मेंस में. एक तो चीज़ होती है अपने आप को टेस्ट करना कि क्वेश्चन देख लिया और वो लगातार लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, एंड देयर इज सो मच ऑफ मिस गाइडेंस जो अवेलेबल है स्पेशली फॉर द बिगिनर्स दिस थिंग, कि वो स्टेज अभी आपकी नहीं है कि आप क्वेश्चन देखते ही सब कुछ लिखने लग जाए, या अपना आंसर आप उससे कंपेयर करें जो टॉपर ने किसी आंसर लिखा होगा. यू आर नॉट एट दैट स्टेज. वो स्टेज आपकी मेंस से 1 महीने पहले आएगी या 2 महीने पहले आएगी. तो अभी आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट PYQ ऑफ मेंस, लुक एट द बेस्ट मॉडल आंसर जो भी अवेलेबल है. एंड देन जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक कवर कर लिया, यहाँ पर NGOs या SHGs टॉपिक कवर करा दिया, तो अब आपको बेसिक मटेरियल तो है ना आपके पास. तो अब आप जस्ट रिवाइज इट घर जाके, एंड जो भी PYQ NGOs SHGs गवर्नेंस पे पूछा हुआ है उससे जाके लिखने की कोशिश कीजिए. एंड आपके 50 आंसर्स विल बी वेरी पथेटिक. आई मीन यू विल फील लाइक कि क्या ही लिख रहे हैं हम लोग, बट आपको स्टेज से निकलना पड़ेगा टू राइट दोज गुड एंड बेटर आंसर्स. सो डोंट बी अफ्रेड कि अभी से ही आप अपने आंसर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे कुछ अभी नहीं होने वाला है, वो आपका बाद का स्टेज है. आई मीन तो अभी जस्ट मॉडल आंसर्स एक तो प्रिपेयर कीजिए, नंबर 1 थिंग. नंबर 2 थिंग इज जैसे ही आप कोई टॉपिक को यहाँ पर पढ़ते हैं क्लास में, घर पे जाके देखिए कि PYQ क्या पूछा और लिखिए जो भी आपको समझ में आ रहा है. जब तक आप नहीं लिखेंगे ना, आपको नहीं समझ में आने वाला कि होने क्या वाला है. तो आप यहाँ पर क्लासेस करें, सो आई मीन यूटिलाइज इट वेरी वेरी इफेक्टिवली, कि आप जो भी यहाँ क्लासेस में पढ़ते हैं जाते एक तो प्रीलिम्स के PYQ देख लो, जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा वहाँ पर जाके देख लिया. सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स से काफ़ी सारे मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं कि देखो आप लिख पा रहे हो क्या, कुछ भी लिखो. आई मीन लिखो तो सही, तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या नहीं लिखना है. जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि आपको सही क्या लिखना है. तो हम इस डर में रहते हैं कि यार अभी तो हम बड़े ऐसे स्टेज पे हैं, हम क्या ही आंसर लिख रहे हैं. और जब तक आप वैसे आंसर नहीं लिखोगे, आप सही आंसर आई मीन बेटर आंसर कैसे लिखेंगे. जस्ट राइट इट. समय क्या आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा था इसके मेंस आंसर राइटिंग के लिए? हाँ, मेंस के लिए जो विजन IAS के टेस्ट थे उसको, जो मेरे टेस्ट थे उसको, जो आंसर्स जो थे सॉल्यूशंस, उसको मैं कंटेंट एनरिचमेंट के लिए यूज़ करती थी, क्योंकि द कंटेंट दैट दे प्रोवाइड इज़ रियली नाइस. तो आई यूज़ टू आई मीन कंटेंट पढ़ के उनका सॉल्यूशंस का, देन मैं ऐसे करती थी. और ऐसे के लिए कुछ स्पेशल किया था मैंने? ऐसे के लिए आप स्मृति मैम को फॉलो कीजिए. अच्छा. आई थिंक ब्लाइंडली फॉलो कीजिए. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्मृति मैम को फॉलो किया है, एंड काफ़ी अच्छे उनको मार्क्स मिले हैं. मैंने भी स्मृति मैम को फॉलो किया था. आई मीन उनके नोट्स देखे थे, काफ़ी सारे एनेक्डोट्स देखे थे वहाँ से. तो आप आई मीन आपके पास तो बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है, सो आप वो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सेक्शनल टेस्ट मेरे केस में क्या था कि मेरी आंसर स्पीड कभी भी कोई इशू नहीं था. नेवर, मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मैंने सिर्फ 2 बार हुआ था एथिक्स के पेपर में, जब मैंने ऐसे 3.5 घंटे लिए थे. मैंने शुरू में जब मैंने अपना पहला एथिक्स का पेपर लिखा, आई टुक इट 3.5 आवर्स टू कंप्लीट दैट पूरा एथिक्स का पेपर. हाउएवर आई रियलाइज़ कि अभी मुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ, मुझे अपनी क्वालिटी देखनी है आंसर्स की. आई विल मैनेज टाइम एनी हाउ. जब मैंने विजन अभ्यास लिखा मेंस का, तो मैंने पेपर अच्छे से कंप्लीट किए थे. सारे पेपर मेरे बहुत अच्छे से हो गए थे. इवन इन माई मेंस मेरे 2 मिनट पहले मेरे सारे पेपर कंप्लीट हो गए थे. सो टाइम लिमिट वाज नेवर एन इशू फॉर मी, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग या फिर जो स्पीड थी वो मतलब आई मीन नेचुरल आप मान लो या कुछ भी मान लो. तो
हाँ, तो एक और चीज़ होती है आंसर राइटिंग में कि जब तक आपको कंटेंट नहीं पता है आप लिखोगे क्या? आई मीन आप तभी भी आप स्पीड से कब लिख सकते हैं जब आपको कंटेंट पता होगा। अगर मुझे एनजीओ की डेफिनेशन पता है या एनजीओ का या एसएचजीज का कुछ पता है तो तभी तो मैं लिख पाऊंगी ना स्पीड से। अगर मुझे नहीं पता तो मैं वहीं रुकी हुई हूँ कि क्या लिखूँ, तभी तो टाइम वेस्ट होता है। सो प्रिपेयर योर कंटेंट वेरी वेरी वाइजली एंड उसको एनरिच करते रहिए, जो भी मॉक्स के जो आपको सोल्यूशंस प्रोवाइडेड होते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऑल्सो लेट्स कम टू द नोट मेकिंग पार्ट जो भी है। तो नोट मेकिंग में आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी आपको बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम में क्या था कि जो पीछे समरी शीट्स होती है ना, मैं उसको ऐसे निकाल लेती थी, आप उसको फोटोकॉपी करा सकते हैं। और जो भी वैल्यूएडिशन आपको मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें लग रही हैं आप उसको वहीं ऐड करते जाइए। और मेरे जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स थे वो सिर्फ 25 पेज के नोट्स थे ऑनलाइन जो थे, और मैंने उनको पता नहीं कितनी बार रिवाइज़ किया था ताकि मैं कर सकूँ। सिमिलरली जब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे कंपैरिजन करके पढ़िए, प्रेसिडेंट गवर्नर को एक साथ पढ़िए एंड देन उसकी टेबल्स बना लीजिए। सिमिलरली जो भी आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ आखिरी के टाइम में 10-15 मिनट लगने चाहिए उस मतलब सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। एंड हाउ विल यू डू दैट, मैंने कैसे किया था, तो ऐसे टेबल बना के यहाँ पर जस्ट राइट इलेक्शन कमीशन जो भी है एंड यूपीएससी, सिमिलरली जो स्टेट वाला होता है ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन फाइनेंस कमीशन होता है, एंड आई मीन देयर इज अटॉर्नी जनरल एंड काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, उसमें यहाँ पर लिखिए टेन्योर जो भी है, जस्ट एक लाइन में सबके मेंशन कीजिए। सेकंड, कौन अपॉइंट करता है इन लोगों को, दैट थिंग। इसमें व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन जो होती है इन चीज़ों की, तो आप ऐसे नोट्स बनाइए प्रीलिम्स के लिए। तो आई मेड दैट, और लास्ट में सिर्फ एक पेज को रिवाइज करने में 5 मिनट ही लगते थे। तो ऐसे आप प्रीलिम्स के लिए कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत के लिए, ऐसे ही स्पेक्ट्रम के लिए, ऐसे ही जो मैंने मिसलेनियस चीज़ों के बताया आपको नोट्स की, रिवर्स एंड सब के लिए, तो आप वो सब कर सकते हैं। तो ये हो गया नोट मेकिंग का। करंट अफेयर्स हैव ऑलरेडी डेल्ट। मेंस के लिए आपको 2 पेज के नोट्स बनाने पड़ेंगे हर टॉपिक पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कल पेपर है, आप पूरी ऐसे कॉपी नहीं उठा के बैठ सकते। अगर आप उठा के बैठेंगे तो आप कल कुछ नहीं लिखने वाले हैं वहाँ पर जाके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक जो भी मेंस का सिलेबस है उसके 2 पेजेस के नोट्स आपके पास बहुत अच्छे से होने चाहिए, और वो भी ऐसे होने चाहिए कि डेफिनेशन इंक्लूड कर दी और कोई न्यूज़ रही वो इंक्लूड कर दी, देन व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, कंक्लूजन क्या हो सकता है। वो 2 पेजेस वेरी मतलब उसको प्रिपेयर करके उसको डिफरेंट जितने भी आप बार आप रिवाइज कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। सेकेंड इज़ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करने पड़ेंगे पहले से ही। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, आई वाज वेरी श्योर कि मैं आर्टिकल 324 से शुरू करने वाली हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन आता है, आई वाज वेरी श्योर कि मैं आर्टिकल 44 से शुरू करने वाली हूँ। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर ड्रॉट से इन सब पे आता है तो आई विल एनडीएमए का जो डेटा होता है कि कितने % वल्नरेबिलिटी है हमारी कंट्री में, मैं वहाँ से शुरू करने वाली हूँ। तो ये सब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे मेरे। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपको वहाँ पर आंसर्स अपने अट्रैक्टिव बनाने पड़ेंगे। इन माई GS1 पेपर आई थिंक मैंने वर्ल्ड मैप भी बनाया, मैंने इंडिया का मैप भी बनाया। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी में आई मेड जो भी क्वेश्चन थे, एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके दिस वॉज एक क्वेश्चन था इस मेंस में, तो मैंने वो भी किया था। तो आप मैप्स बनाइए। फ्लो चार्ट्स भी मैंने इस बार इंक्लूड किया था अपने पेपर में, GS पेपर 3 में पॉवर्टी समथिंग कुछ वर्चुअस या विशियस साइकिल का कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप ऐसे मैप्स बनाइए, और ये सिर्फ 10 सेकंड लगती है उनको बनाने में जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। जस्ट ऐसे यूट्यूब पे देख लीजिए कि कैसे 10 सेकंड में बनाते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है एंड जस्ट आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में वैल्यू एडिशन में आपको कमिटी, कमीशन, रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, और इसके लिए काफ़ी सारा वैल्यू एडेड मटेरियल ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। जस्ट किसी का भी एक उठा सकते हैं, जस्ट रिवाइज इट या उसको पढ़ लीजिए। काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने वैल्यू एडेड मटेरियल ऑलरेडी उठा रखा है, मैंने भी उठाया था एक का और मैंने वहाँ से रिवाइज किया था। सेकंड इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड एथिक्स में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपर्स कॉपीज़, जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतने ज़्यादा पढ़िए। सेकंड थिंग इज़ कि टॉपर्स कॉपी से वैल्यू एडेड जो कंटेंट है ना वो निकालिए। फॉर एग्जांपल श्रुति मैम की जो कॉपीज़ है, दे आर रियली नाइस इन टर्म्स ऑफ आई मीन जो भी वो कंटेंट उन्होंने वहाँ पर लिखा है, तो डायरेक्टली वहाँ से एग्जाम्पल्स उठाइए, अपने एग्जाम्पल्स में यूज़ कीजिए। सिमिलरली विशाखा मैम की कॉपीज़ हैं एंड मुस्कान मैम भी है एक, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे थे। तो टॉपर्स कॉपीज़ उठाइए, उनको देखिए कि वो कैसे आंसर्स लिखते हैं, वहाँ से कंटेंट उठाइए एंड आई थिंक ये हो सकता है। फॉर द मेंस आई थिंक दिस वाज एवरीथिंग फॉर द मेंस। फॉर इंटरव्यू आई गॉट 201 इन माई इंटरव्यू एंड माई इंटरव्यू वॉज मोस्टली ऑन माई डैफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो बहुत ही अच्छे से मतलब लिखिए। हम जब फॉर्म भरते हैं ना तो हमें क्या होता है कि हाँ हम अपनी जो भी एक दिन भी करा होगा ना वही चीज़ हम वहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन जब प्रिपेयर करना पड़ता है ना तब रियलाइज़ होता है कि क्या ही हमने लिखा है। आई मीन इतनी क्यों हमें ऐसा लिखना था। तो वो तो खैर बाद की स्टेज है।
लेकिन स्टिल जो आपका डैफ होता है आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है. एंड इंटरव्यू इज़ समथिंग जो सारी प्रिपरेशन ही आपकी काम आती है उसमें, क्योंकि आप मेंस में इतना पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में इतना पढ़ते हैं, तो सब आप वो इंटरव्यू में यूज़ करते हैं. एंड आई गेव 14 मॉक इंटरव्यूज़ बिफोर माई मेन इंटरव्यू. तो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरव्यू. एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करते हैं योर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंक्रीज़ होती हैं. न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी स्किल्स आपकी इंप्रूव होती है. कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं, या फिर ऐसे जो बोलने वाली स्किल्स है, वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज़ होती है. सो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. मेन्स में तो क्या होता है, हमारे क्वेश्चन को देख के हमारे फेस पे जो भी ऐसे आ रहा होता है ना कि नहीं आता, वो हमारे तक ही रहता है, पर्सनल रहता है. लेकिन इंटरव्यू में इट्स लाइक सब ऐसे देख रहे होते हैं कि आप नर्वस हो रहे हो या फिर आपसे नहीं आ रहे हैं. So it's very important to communicate with people. Have a very good peer group. I was very fortunate enough to have a very good peer group, and they've always supported me. And जब भी हमें ज़रूरत होती थी तो हम we used to discuss things. So आप तो सब यहीं रहते हैं अपनी क्लासेस में, अपने एक अच्छा peer group कीजिए, communicate with them, अच्छे से बात कीजिए. तो यही है इंटरव्यू प्रिपरेशन, I think. So that's all about it. I mean from my side. So